Students, today we'll be dealing with the topic registration of marriage under Hindu Marriage Act. Now, today we'll be dealing with in what conditions the registration of marriage is compulsory under Hindu Marriage Act. And while dealing with this, we will be going through Section 8 of Hindu Marriage Act. Now, what does Section 8 says of Hindu Marriage Act? The Hindu Marriage Act, Section 8 deals with the registration of Hindu marriage. Hindu marriage is to be registered for the purposes of getting a clear proof of marriage. क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा इससे हमको क्या मिलेगा? एक तरीके का क्लियर प्रूफ ऑफ मैरिज मिलेगा. This shall be done by filing a Hindu marriage register kept for the purpose. और ये basically registration करने के लिए what we have to do? We have to move an application and accordingly our application would be what would be registered, and on the basis of that application our marriage would be registered and we would be given a certificate. So here we have to make an application which is necessary for the registration purposes and which is kept in the marriage office, that is to say in the where we have to do the registration under Hindu marriage register, which has been kept for the registration of the marriage among Hindus in the registration office. Now it is a discretion of the state government that it can make the entries of the marriage for the purposes of registration as compulsory. Again it depends upon the state government to state government कि उस स्टेट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रखना है या नहीं रखना है. एंड एनीबडी हु वुड बी वॉलेटिंग दिस प्रोविजन, और अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी रखा गया है और यदि वो पर्सन क्या करता है, वॉलेट करता है टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी हेल्ड punishable with a fine up to rupees 25. Next is whenever the government makes any rule pertaining to the registration of marriage, then all such rules are to be laid down in front of the legislative parliament. And it shall be the discretion of the legislature to finalize them. जब भी कोई गवर्नमेंट बेसिकली मैरिज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई रूल बनाना चाहती है, देन इन दैट केस उसको रूल बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको जो स्टेट का पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है उसके सामने उसको रखना पड़ेगा. लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जब उसको फाइनलाइज कर देगी, पास कर देगी, तभी जाके जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उस पर क्या बना सकेगा, उसके ऊपर लॉ बना सकेगा. अब ये जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है ये इसको फाइनलाइज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, उसमें कुछ चाहे तो चेंजेस भी सजेस्ट कर सकती है. दैट इज व्हाट इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8. नाउ इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन of this particular act, then in that case in relation to specifically the registration, we would find that the Hindu marriage register shall be kept open for inspection and shall be admissible as an evidence. क्योंकि हमने इस रजिस्टर में अपना मैरिज रजिस्टर करने के लिए बाय वे ऑफ एप्लीकेशन अपना नाम एंटर कराया है, तो हमारा जो बेसिकली मैरिज रजिस्टर हो जाने के बाद में वो पर्टिकुलर रजिस्टर एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी भी ओपन रहेगा, कोई भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, एज वेल एज ये जो रजिस्टर है इसके जो कंटेंट्स हैं इनको हम एज एन एविडेंस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर एडमिसिबल इन दी कोर्ट. Next is on the payment of the prescribed fees, the certified copy of it can be taken from the office of the registrar. अगर हमको मान लीजिए इस मैरिज सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए, then in that case हमको एक prescribed fees जो बताई जाएगी वो पे करनी होगी, and once we pay the fees हमको हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी. कौन देगा? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार देगा, जहां पे हमने उसको क्या किया है, रजिस्टर किया है. If any marriage is not registered as per the provision stated above, then it shall not be inferred that the marriage has not taken place. अब क्योंकि ये बोलता है, ये तो अभी का प्रोविजन है कि मैरिज जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए और ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो ये डिक्लेयर करे कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं. लेकिन यदि मान लीजिए हमारी मैरिज जो है वो रजिस्टर नहीं हुई सपोज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैरिज ही नहीं हुई, ऐसा हम इन्फर करेंगे क्या? नहीं, ऐसा हम इन्फर बिल्कुल नहीं करेंगे. इफ एनी मैरिज इज नॉट रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन जो भी स्टेटेड अबव है, इट डज नॉट मीन और इट शैल नॉट बी इन्फर्ड दैट द मैरिज हैज नॉट टेकन प्लेस. क्योंकि आपके पेरेंट्स की या पेरेंट्स के पेरेंट्स की आप देखेंगे देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ सर्टिफिकेट दे हैव कि उनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर
हुई है, इस तरीके का उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मैरिज ही नहीं हुई है। नाउ कम टू सेक्शन 9 विच डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नाउ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना। और कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ होने के नाते जो राइट्स अवेलेबल होते हैं उन्हें हम कॉन्जुगल राइट्स बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली सेक्शन 9 है, इसमें हम रिस्टोर करवा ले रहे हैं अपने कॉन्जुगल राइट्स। अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज ऑलवेज टू बी फाइल्ड इन द फैमिली कोर्ट, क्योंकि इस तरीके के मैटर्स को डील करने के लिए हमारे पास में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट है, और इसीलिए अभी जो है ये मैटर्स कहाँ फाइल किए जाने चाहिए? फैमिली कोर्ट में किए जाने चाहिए। तो फैमिली कोर्ट में न सिर्फ मेंटेनेंस, न सिर्फ डिवोर्स, बल्कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए भी हम मैटर फाइल कर सकते हैं। It means a marital company of the spouse to be restored by the court. इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कॉन्जुगल राइट्स का? कि जो मैरिटल कंपनी है स्पाउस की, मैरिटल कंपनी मतलब स्पाउस, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, अगर बिना किसी वजह से अगर एक दूसरे की कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, देन इन दैट केस या एक दूसरे का एसोसिएशन छोड़ के चले जाते हैं, तो हम कोर्ट में भी जाके इस एसोसिएशन को रिस्टोर करवा सकते हैं, और उसी पर्पसेस के लिए हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट डालते हैं। Whenever one of the spouse withdraws, इसको और डिटेल में हम देखते हैं कि जब कभी भी एक स्पाउस मतलब वाइफ या फिर हस्बैंड, whenever one of the spouse withdraws himself or herself from the company of another without any reasonable excuse or without any justification to that effect, then द पार्टी विच इज अग्रीव्ड, जो भी पार्टी को इससे आहत पहुंची है, जो भी पार्टी इससे अग्रीव्ड हो गई है, वो फाइल कर सकती है पिटिशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। कहाँ पे? फैमिली कोर्ट में। अर्लियर इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, but after the enactment of family court act now it is to be filed before the family court. If the court is satisfied, अगर हमने एप्लीकेशन मूव किया and the court is satisfied as to the contents of petition, जो भी हम ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पिटिशन, और यदि मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में कोर्ट सेटिस्फाई है, देन दैट केस द कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करेगा डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कोर्ट जो है वो क्या करेगा? अवॉर्ड करेगा डिक्री। और डिक्री मतलब क्या हो गया? इट वुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन passed by the court or given by the court determining all the matters between the parties, so down to finally declare certain decision which would be having a binding effect over the parties. तो यहाँ पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है as to the contents of the petition, then the court जो है वो award करेगा decree for restitution of the conjugal rights. Now next is, if either of the spouse takes a plea in case that there is a reasonable excuse for withdrawal from the company of another, then the burden of proof lies on that spouse who assert it. कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्पाउस जो है वो ये प्ली लेता है कि उसके पास में रीजनेबल एक्सक्यूज है विड्रॉ करने के लिए कंपनी, उसके पास में क्या है? रीजनेबल एक्सक्यूज है विड्रॉ करने के लिए कंपनी ऑफ द अनदर, देन बर्डन ऑफ प्रूफ, जो भी इस तरीके की बात को असर्ट कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होगा कि वो प्रूफ करे कि क्यों उसने विड्रॉ किया है बेसिकली कंपनी ऑफ द अदर स्पाउस। नाउ come to next which says judicial separation, section 10 judicial separation. Now what does judicial separation? यहाँ पे हम डिवोर्स नहीं मांग रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? हम जुडिशियल सेपरेशन मांग ले रहे हैं, जिसमें कि हम अलग अलग ही रहेंगे बट मैरिज टाई जो है वो एंड नहीं होगी। डिवोर्स से क्या होता है? मैरिज टाई जो है वो एंड हो जाती है। यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं? जुडिशियल सेपरेशन मांग रहे हैं। The provision relating to judicial separation has been provided under section 10. Now let us see what is the provision. Judicial separation means when the husband and the wife wants them to get separated from the competent court. हम क्या करते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए? बेसिकली अवार्ड पास करो या डिक्री पास करो, इस तरीके का हम एप्लीकेशन मूव करते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, और कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में हम ये बोलते हैं कि हमको क्या होना है? जुडिशियल सेपरेशन होना है। देन इन दैट केस इस तरीके से जब हम एप्लीकेशन करते हैं, ये भी अभी हम कहाँ करते हैं? फैमिली कोर्ट में ही करते हैं।
Earlier, before the enactment of family code, it was before the district code. Then it is called as a judicial separation. As per the provision of section 10, if the husband or a wife want to file a petition for judicial separation, then they have to file that petition into a family court on the ground of judicial separation, which are also the ground of divorce. यानी जुडिशियल सेपरेशन के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल कर सकते हैं. हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी ये पिटिशन फाइल कर सकता है. किस चीज के लिए? फॉर जुडिशियल सेपरेशन. अब जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड्स हैं वही सेम ग्राउंड्स किसके हैं? ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स है. So when we'll be dealing with the topic divorce, we will be going through that particular grounds, and on the basis of that grounds हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जुडिशियल सेपरेशन का भी जो बेसिकली पिटिशन है वो फाइल कर सकते हैं. अगर हम बात करें बेसिकली कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं डिवोर्स के, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं डिवोर्स के, जिसमें कि हम ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं डिवोर्स के जो कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी सिमिलरली अप्लाई होते हैं. Then in that case, students, there is adultery, cruelty, desertion, insanity, conversion, leprosy, venereal disease, renouncing of the world, not heard from the last 7 years, और decree of judicial separation या decree of judicial separation जो है वो पास हुआ है पार्टीज के ऊपर. देन इन दैट केस ये सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं. देयर आर इन ऑल 11 ग्राउंड्स. देयर आर इन ऑल 11 ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन टेक अ डिवोर्स, and similar grounds are also available for the purposes of judicial separation too. Now next is, if the court is satisfied on the strength of the petition of judicial separation, that then he can order for judicial separation. From the date of the decree of judicial separation, the husband and wife has to stay separately from each other. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया पिटिशन का स्ट्रेंथ देख के कि यस जुडिशियल सेपरेशन दिया जाना चाहिए, देन इन दैट केस कोर्ट उसमें जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर कर देगा. और जुडिशियल सेपरेशन कौन सी डेट से हो जाएगा? जिस भी डेट को कोर्ट ने डिक्री पास की है उस तारीख से हस्बैंड और वाइफ जो है उनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली स्टे करना पड़ेगा एक दूसरे से. But in case they want to reunite or rejoin with each other, then they can make such application to the court, and court shall allow them to do so. In the examining of the grounds of judicial separation must be stated the grounds of divorce and the judicial separation are same. In examination, the grounds of judicial separation must be stated. The grounds of divorce and the judicial separation are same. So here means what? If after getting the decree of judicial separation, husband and wife they both are staying separately from each other, लेकिन वो अलग अलग रहते हुए अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनको वापस से रीयूनाइट होना है या रिजॉइन होना है, देन इन दैट केस वो क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंगली कोर्ट में एप्लीकेशन करेंगे, और कोर्ट में एप्लीकेशन करने के बाद में कोर्ट उनको परमिशन देगा. कोर्ट ने उनको परमिशन देना ही है, क्योंकि पर्पस क्या है? मैरिज टाई को बचाना है. मैरिज टाई को तोड़ना है क्या? नहीं. तो ऐसे में कोर्ट जो है उनको परमिशन देनी ही पड़ेगी दोनों को साथ में रहने की, एंड अकॉर्डिंगली दोनों जो है वापस से रीयूनाइट या रिजॉइन हो सकेंगे. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10. So students, today we dealt with which provisions? Today we dealt with section 8, we dealt with section 9, and we dealt with section 10. When we dealt with section 8, what was there provided in the section 8? Section 8 we dealt with registration of Hindu Marriage Act. Section 9 we dealt with restitution of conjugal rights, and section 10 we dealt with judicial separation. So students, thank you so much for attending this session. I hope you have understood the concept. Thank you very much.